Good morning, students. Today we will continue chapter 5 with its fourth worksheet. This worksheet is based on simple interest. You have done simple interest in your previous class also. So what is simple interest? Do you remember? If we deposit some money which is called principal for a fixed rate of interest for a fixed time, then after that time we get some extra money. That extra money is called simple interest on that principal. जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है उसके ऊपर हमें जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट. और हम सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में होगा. टाइम विल बी इन ईयर्स. और जो एक्स्ट्रा मनी है अगर हम उसको प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट हमने दिया हुआ है उसमें ऐड कर दें देन वी गेट द टोटल अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. नाउ बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स वी विल सॉल्व द वर्कशीट 4. Worksheet 4, first sum is principal is given 600 rupees. Time is 2 years and rate of interest is equal to 10% per annum. Per annum means this rate of interest is for 1 year. And we have to calculate the simple interest. First of all हम लिखेंगे principal is equal to rupees 600. Time is equal to 2 years. Rate of interest is equal to 10%. PA means per annum means per year. And formula for simple interest is equal to P into R into T. P is 600. R is 10%. T is 2 years. Now what is the meaning of 10%? It means divided by 100. So it changes into 600 into 10 into 2 divided by 100. 0 से 0 कट हो गई and we multiply 6 into 10 into 2 and we get simple interest is equal to rupees 120. Similarly in B part, principal given is 6500. Time is 1.5. 2 1 the 2 plus 1 3 by 2 years. Rate of interest is equal to 10% per annum. Simple interest is equal to P into R into T. Value put करेंगे 6500 into 10%. 10% means 10 upon 100 into 3 by 2. और जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे we get simple interest is equal to rupees 975. In D part, principal is equal to rupees 2600. Time is equal to 3 years. Rate of interest is equal to 5.5%. 2 5 the 10. 10 plus 1 11 by 2 per annum. 11 by 2% per annum per year. और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी. हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. प्रिंसिपल है 2600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11 by 2. 11 by 2 और परसेंटेज की वजह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 भी आएगा. इंटू टाइम इज़ 3 years. 0 से 0 की कटिंग हो गई. 2 1 the 2. 13 2 the 26. और हमारे पास क्या बचा 13 इंटू 11 इंटू 3. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 429. Here they have also asked for amount. What is the formula of amount? जो प्रिंसिपल हमने दिया है और उसमें जो ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसको हम ऐड कर देंगे. प्रिंसिपल है 2600 और सिंपल इंटरेस्ट है 429 और इनको प्लस किया एंड वी गेट रुपीज़ 3029 रुपीज़. सेकेंड सम इज हरी बोरोड रुपीज़ 450 from his friend at 6% per annum. He returned
द मनी आफ्टर 8 months. हाउ मच मनी डिड ही पे? जो मनी उसने बोरो की है दैट इज़ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 450. रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 6% पर एनम. एक साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 6%. टाइम इज इक्वल टू 8 months. बट यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ फॉर 1 year. तो हमें इसको भी ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 year में कितने मंथ्स होते हैं? 12. तो हम 8 को 12 से डिवाइड करेंगे और कटिंग की 4 2 द 8 and 4 3 the 12. So we get 2/3 years. अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ इक्वल टू P इंटू R इंटू T. P इज़ 450, R इज़ 6%. 6% मीन्स 6/100 इंटू 2/3. ये 1 0 से 0 कटी हुई. 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 1 द 5 and 5 9 the 45, 3 3 the 9, and simple interest comes out to be rupees 18. Total amount to be paid. अब उसने कितने पैसे जो हैं वो वापस करने हैं? 450 तो उसने लिए थे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी उसको देनी है 18 रुपीज़. 450 प्लस रुपीज़ 18 दैट इज़ इक्वल टू 468. इतनी मनी उसको वापस करनी है. For sum, a farmer borrowed rupees 5300 at 8% interest per annum. At the end of 2.5 years, he cleared his account by paying rupees 4600 and a watch. Find the cost of watch. एक फार्मर ने बोरो किए 5300 8% इंटरेस्ट पर और 2.5 year के बाद उसने एक वॉच दी और साथ में 4600 जो है वो मनी पे की. तो हमें ये देखना है कि वॉच की वैल्यू क्या थी. हम इसके लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल अमाउंट देखेंगे. सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. P इंटू R इंटू T. प्रिंसिपल इज़ 5300. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8%. 8% मीन्स 8/100 इंटू टाइम इज़ 5/2. कटिंग की और उसके बाद सॉल्व करने पर आई गॉट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 1060. तो उसको टोटल मनी कितनी पे करनी है? 5300 जो है वो तो उसने बोरो किए थे और ऊपर से एक्स्ट्रा मनी है वो उसको पे करनी है 1060. और जब हमने ऐड किया तो रुपीज़ 6360 रुपीज़ उसको जो है वो वापस करने थे. ही क्लियर्ड हिज अकाउंट. तो उसने क्या किया? 4600 कैश दिए और साथ में एक वॉच दी. तो वॉच की कॉस्ट कितनी हुई? 6360 में से हम 4600 को माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा टोटल अमाउंट टू बी पेड था. उसमें से इतनी मनी उसने पे कर दी और बाकी जो मनी थी वो एक वॉच के प्राइस के रूप में उसने पे की. तो वॉच की कॉस्ट क्या आ गई? दैट इज़ इक्वल टू 1760 रुपीज़. फिफ्थ सम में हरीश ने बोरो किए 2500 एट 3% पर एनम फॉर 2 years और उसने बोरो किए 1000 रुपीज़ एट 5% पर एनम, वो भी 2 years के लिए. तो व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे? 2 साल के बाद उसको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना है? हम पहले प्रिंसिपल 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और टाइम 2 years के साथ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. देन वी विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर 2 years. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 150 और फिर सेकेंड प्रिंसिपल जो है रुपीज़ 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और उसके साथ जब हमने कैलकुलेट किया देन वी गेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 100. तो उसको टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा? रुपीज़ 150 प्लस रुपीज़ 100 दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 250.